As we all know, 20 July is observed as World Hepatitis Day to honor Dr. Baruch Blumberg, who discovered hepatitis B virus and invented the vaccine as well. Today, we intend to raise awareness against hepatitis B to serve the goal of eliminating hepatitis B virus by the year 2030. Let us know from our gastroenterologist, Dr. Nadeem Parvez, about some important information related to viral hepatitis. What is viral hepatitis and why World Hepatitis Day is celebrated? Viral hepatitis is basically inflammation or infection of the liver by hepatotropic viruses, which is the main concern is the hepatitis B virus. However, there are other viruses which affect the liver and can cause acute or chronic liver disease: hepatitis C, hepatitis A, and hepatitis E. These are the major 4 types of hepatitis viruses which are of concern. And the most important is the hepatitis B, for which these campaigns have been launched worldwide. Especially the World Hepatitis Day is celebrated to make people aware about the hepatitis B virus infection. To be more precise is that how this virus is getting infected and how it can be prevented by treatment and vaccination. This is the important thing. In today's world, approximately 300 million people are living in the world with hepatitis B virus infection, and approximately 15% of the world population with hepatitis B, the India contributes to that load. So we know that, and the prevalence is approximately 2 to 4% in India. So it means that a lot of people in India is having hepatitis B virus infection. So by celebrating this day, the purpose is to make people aware, and the goal of this campaign is to make hepatitis B eliminated by the year 2030. So with public health measures, so that will require public awareness, healthcare involvement, and the support from the civil society and the government. So that's why World Hepatitis Day is celebrated, and a mark day is the 28th July. सर, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस का मतलब वायरल हेपेटाइटिस का क्या-क्या कॉमन टाइप्स क्या होते हैं? मेन जो कंसर्न टाइप है वो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के तौर पर मतलब लिवर को डैमेज कर सकते हैं, लिवर सिरोसिस करा सकते हैं, लिवर कैंसर करा सकते हैं. द मेजर बर्डन इज ऑफ द हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई भी होते हैं जो एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि स्पेशली रेनी सीजन में, बिकॉज दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीकर एंड रूट, सो दे इस रेनी सीजन में खास करके बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हो जाता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हेपेटाइटिस ए या ई का इन्फेक्शन होता है, and they are generally self-limiting. They do not cause generally chronic hepatitis or chronic liver disease, cirrhosis. So, but hepatitis B और C ऐसे हैं वायरस जो chronic liver disease कराते हैं, जो hepatitis जो cirrhosis करा सकते हैं और hepatocellular carcinoma तक करा सकते हैं. ओके, सो अभी आपने बताया कि क्रॉनिक मतलब एक्यूट एंड क्रॉनिक में कैटेगराइज हो सकता है हेपेटाइटिस. सो वो बॉडी को हमारे कैसे हार्म कर सकते हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस तब बोलते हैं जब एकदम से एब्रप्टली वो वायरस का जो इन्फेक्शन हो उसने बॉडी में आपको कुछ सिम्टम्स दिए. कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, इवन हेपेटाइटिस बी या ए और ई का भी, तो वो ऐसे ही चला गया विदाउट एनी सिम्टम, अपने आप रिजॉल्व हो गया. बट हाउ एक्यूटली दे कैन प्रेजेंट, लाइक जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को, विच इज एक्यूट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन इज जॉन्डिस, प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस. और साथ में प्रोडाउन सिम्टम्स होते हैं कि टू ऑनसेट उसको फटीग एंड वाले ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं. अगर जो और विद दैट फीवर वगैरह इनिशियल पीरियड में आ सकता है. बट द मोर जिससे हम आप एक्चुअल पकड़ते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, इट इज जॉन्डिस. सो हाउ कॉमन इज हेपेटाइटिस बी एंड सी इन इंडिया? Viral hepatitis, which causes chronic liver disease or cirrhosis or hepatocellular carcinoma, the most common type is hepatitis B in India. The load is quite
and the prevalence rate in India is 2 to 4%, which comes into the intermediate state in the world. So which I said that approximately 15% of the world load of hepatitis B virus infection is in our country. As you mentioned earlier that about hepatitis A and E. So what is hepatitis A and E? अभी I just talked about hepatitis A और B. Hepatitis A, E is basically an acute hepatitis virus. तो ये जॉन्डिस कराते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं. एक बार जॉन्डिस हुआ वो रिकवर कर जाते हैं. ज्यादातर पेशेंट्स तो फर्स्ट 2 वीक्स तक पीक करता है जॉन्डिस, फिर धीरे धीरे वो स्लोली रिकवर कर जाते हैं. बट कुछ पेशेंट्स को कई बार 1.5-2 महीने 3 महीने तक भी ये जॉन्डिस रहता है, ग्रेजुअली जिससे फिर ठीक हो जाते हैं. सो सेल्फ लिमिटिंग जॉन्डिस होती है और वो इम्प्रूव हो जाते हैं ओवर द टाइम. यस, समटाइम्स कुछ पेशेंट्स के लिवर फेल भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट वायरस. सो A and E is basically acute hepatitis. B and C mainly chronic hepatitis. However, B can also cause acute hepatitis, acute jaundice also. Okay. So how hepatitis B is transmitted? हेपेटाइटिस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे ट्रांसमिट होता है. मतलब ट्रांसमिशन का आपको मोड पता होगा तो इट कैन बी, यू कैन प्रिवेंट, यू नो दैट कैसे हम इसको रोक सकते हैं. इसका जो ट्रांसमिशन, जो मेन ट्रांसमिशन रूट्स होते हैं दैट इज हम डिवाइड करते हैं उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन के मोड पर. वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब अगर किस मदर टू चाइल्ड, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो इसको बचाने के लिए बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है. मदर को इन द लास्ट ट्राइमेस्टर में कुछ पेशेंट्स को जिनके वायरल लोड ज्यादा होता है तो उनको दवाइयां भी शुरू की जाती है. सो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब माँ से बच्चे में. हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो विच इज क्वाइट कॉमन, वो ट्रिवियल ट्रॉमा से, ब्लड कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट इंजरीज के थ्रू या शेयरिंग ऑफ नीडल्स लाइक आईवी ड्रग अब्यूज में, या कई बार रेजर वगैरह में लग गया उसके थ्रू चला गया. तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल रूट. सो ये दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इन द अर्ली चाइल्डहुड. The other is the sexual route because it is the viral hepatitis. The virus जो होता है वो semen में मिलता है, तो that is also a very common mode of transmission, especially those who are multiple sexual partners and जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, so they are at high risk. तो हम इनको कैसे बचा सकते हैं? तो यही तरीका होता है कि when you know the mode of transmission, you can prevent, you can take preventive measures. However, जनरल जो एक पब्लिक में कई बार स्टिग्मा होता है कई बार कि हेपेटाइटिस बी हाथ छूने से फैल जाएगा, हग करने से फैल जाएगा, खाना शेयर करने से फैल जाएगा. ऐसा नहीं है. ये बात बहुत जरूरी जानना है क्योंकि किसी के फैमिली मेंबर को अगर हेपेटाइटिस बी है या कोई जॉब में है कोई जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, आपको पता है, तो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है क्योंकि ये छूने से, साथ में बैठने से, खाने से ये नहीं फैलता. ये ब्लड एंड जो सोर्सेज हैं उनके कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलने का चांस होता है. अदरवाइज इन जनरल सोशल लाइफ में इसको फैलने का चांस बहुत ही रेयर है. सर, जिनको हेपेटाइटिस बी है उनको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? हेपेटाइटिस बी कई सारे पेशेंट्स को तो कोई सिम्टम नहीं होगा. ज्यादातर पेशेंट्स को एक्चुअली में सिम्टम होते नहीं है. आप इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है कि मदर है, उनके एंटीनेटल पीरियड में. नाउ इट इज मैंडेटरी कि सारे पेशेंट्स का हेपेटाइटिस बी सी टेस्ट किया जाता है, तो उनको इंसिडेंटली मिलता है हेपेटाइटिस बी का. हम बहुत सारे प्रोसीजर से पहले, सख्ती से पहले की जाती है. इंसिडेंटल होता है, कोई एसिम्प्टोमेटिक लंबे समय से ये लोग को कैरियर के स्टेट में रहते हैं, तो इनको सिम्टम कुछ नहीं होता है, जस्ट वायरस बॉडी में डिटेक्ट होता है. सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक्यूट जब फ्लेयर हो गया उसका क्रोनिकली इन्फेक्टेड का, तो वो जॉन्डिस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. कई सालों को जब वो डेवलप करेंगे, क्रोनिक लिवर डिजीज अगर उनको हो जाती है, सिरोसिस हो जाती है, तो सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, जैसे पेट में पानी हो गया, लाइक एसाइटिस, या उसको अपन ब्लीड हो गई, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी होती है.
तो दीज आर द क्रोनिक प्रेजेंटेशन जो अल्टीमेटली जब एंड स्टेज जब लीवर ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। कुछ लोगों का हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर कैंसर हो सकता है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से। तो ज्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होंगे और सम पेशेंट्स ओवर द इयर्स 15 से 20% लोगों को जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उनको लिवर सिरोसिस क्रोनिक लिवर डिजीज होने का चांस होता है। So, what are the treatments available for hepatitis B and C? हेपेटाइटिस बी के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, अच्छे मेडिसिन हैं, पोटेंट मेडिसिन हैं एंड अफोर्डेबल रेट्स पे भी हैं। और जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन अगर हो गया तो सबको दवाई की जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। उसके हमें देखने होते हैं, इन्फेक्टिविटी देखनी होती है और लिवर की स्टेटस देखनी होती है, देन वी डिसाइड कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जनरली हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और मे बी इवन लाइफ लॉन्ग भी ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। बट सर्टेन ग्रुप्स में लाइक प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जब हम लास्ट टाइम में देते हैं जस्ट टू प्रिवेंट मैटरनल टू फीटल ट्रांसमिशन, दैट इज अ शॉर्ट लिव ट्रीटमेंट होता है, आफ्टर कुछ वीक्स आफ्टर डिलीवरी तक देते हैं, देन वी स्टॉप इट। अगर आप हेपेटाइटिस सी की भी बात करें तो हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट है दैट्स ऑलमोस्ट अ क्योर, बिकॉज जो उसका डेफिनेटिव थेरेपी है 12 वीक्स थेरेपी देते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा लंबा भी चलता है, बट ऑलमोस्ट द क्योर रेट इज 90%। सो उनमें ज्यादातर हेपेटाइटिस सी में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डेफिनेटिव टाइम पीरियड के लिए। बट हेपेटाइटिस बी के लोगों को इस बात को समझना होता है कि एक तो इस बात की पैनिक नहीं होनी चाहिए कि हेपेटाइटिस बी हो गया तो इमीडिएटली मुझे दवाई की जरूरत है, इमीडिएटली मेरा लिवर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्यादातर पेशेंट्स को कोई लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको हेल्थ केयर में फॉलो अप करना होता है, उनके वायरस के डीएनए टेस्ट करते हैं, बीच में लिवर के स्कैन्स करते हैं, आपने सुना होगा फाइब्रो स्कैन्स करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, लिवर फंक्शन देखते हैं, तो उस पर डिसाइड करके हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। किसी को जरूरत नहीं भी पड़ती है, किसी को जरूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। सो ट्रीटमेंट अच्छा मौजूद है, दवाई है, बट किसको जरूरत है वो हेल्थ केयर पे जब आप आते हैं तब डिसाइड होता है। सर, आपने प्रिवेंशन के बारे में बताया थोड़ी देर पहले, तो क्या क्या मतलब वेज है प्रिवेंट करने का ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी? हम बेटर टर्म पे अगर हम बात करेंगे तो हेपेटाइटिस बी एलिमिनेशन की बात हो रही है आज हेपेटाइटिस बी एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम सोसाइटी में। तो ये जो WHO ने एक गोल बनाया कि हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में अवेयरनेस करेंगे लोगों को और हम हेपेटाइटिस बी को 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे। सो हाउ कैन वी एलिमिनेट? तो ये कि एक जो टारगेट बनाया उसके लिए एटलीस्ट 90% लोग जो है ये न्यू इन्फेक्शंस को हमें कम करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 65% से ज्यादा लोग जो है ये इस वायरस से उसकी मोर्टेलिटी कम करनी पड़ेगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है कि एक तो आइडेंटिफाई द वायरस एंड दोज हु आर इन्फेक्टेड विद द वायरस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टेस्ट करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे इस वायरस के लिए उतना पता चलेगा कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं और जो इन्फेक्टेड हैं उनको दे शुड बी ट्रीटेड। सो टेस्ट एंड आइडेंटिफाई, सेकंड इज ट्रीट द इन्फेक्शन, थर्ड इज वैक्सीनेट द अनइन्फेक्टेड पर्सन। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ नहीं है उनको हम बचा सकते हैं। उसके लिए बहुत पोटेंट, बहुत ही अच्छा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मौजूद है और प्रोटेक्शन रेट जो इसकी जो पावर है मोर देन 90% से ज्यादा है। तो और अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। इनफैक्ट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्लानिंग है उसमें भी अभी ये एट बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। सो इस बात का जानना भी जरूरी है और लोगों को भी बताना है। सोसाइटी में भी दे शुड बी अवेयर कि as much as people can be screened and especially the high risk groups उनको तो स्क्रीनिंग करना ही है। और वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन ड्राइव होनी चाहिए। ज्यादातर लोग वैक्सीनेट होंगे तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं एंड एलिमिनेट कर सकते हैं। सर, अभी आपने अभी भी बताया कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए जिनको नहीं हुआ। सो बहुत जनों का ये कंफ्यूजन रहेगा, रह सकता है कि
Is hepatitis vaccine safe? Yes, definitely. Hepatitis B vaccine is quite safe. ऑलमोस्ट यहाँ हम जो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशली आप देखेंगे कि जो पेशेंट्स ऑन डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनको तो फ्रीक्वेंटली उनको बिफोर इवन स्टार्टिंग डायलिसिस दिया जाता है। और बच्चों में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इस नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है अभी, तो उनको देयर इट्स क्वाइट सेफ। तो सेफ्टी का कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है हेपेटाइटिस बी का। और मैं आई वुड से दैट कि जिन्होंने नहीं वैक्सीन लगाया है तो पहले तो इट्स बेटर टू दैट एटलीस्ट टेस्ट कर लेना चाहिए जो भी एडल्ट्स हैं खास करके, एंड देन यू कैन गो फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन वेरेवर अवेलेबल। सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या क्या फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस आप रिकमेंड करना चाहेंगे टू प्रिवेंट द डेथ्स? फूड हैबिट से तो ये रिलेटेड नहीं है जो हेपेटाइटिस बी और सी है। जनरली हेपेटाइटिस ए और ये फीको ओरल रूट से है, तो ऑब्वियसली आपको हाइजीन फूड का मेंटेन करना चाहिए। पानी खास करके जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो क्लीन होना चाहिए। तो आप जितने अनक्लीन सराउंडिंग, तो आपकी जब क्लीन सोसाइटी होगी उतनी ये वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के इन्फेक्शंस कम होंगे। अगर बी और सी का फूड से रिलेटेड नहीं है तो उनके सेफ्टी मेजर्स यही है जो हमने आपको बताया कि सेफ वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है। जो लोग ड्रग एब्यूजर्स में उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजा जाए, और उन लोगों को खास करके ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नीडल शेयरिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। और सेफ हॉस्पिटल बायो जो हैजार्ड्स हैं उनकी सही तौर पर मैनेजमेंट हो। नीडल्स का यूज कहीं ना हो, आजकल तो नहीं भी होता है। ब्लड की स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है, और जो लोग इन्फेक्टेड है उनको ट्रीट किया जाए, जो लोग ताकि वो लोग दूसरों को इन्फेक्ट उनसे किसी को ना हो। इन दैट केस अगर ट्रिवियल इंजरीज से जो फैल सकते हैं उनको भी एटलीस्ट अवेयर करना जरूरी है कि क्या क्या मोर सेफ है, द सेफ्टी मेजर्स कैन बी टेकन। एंड एज आई टोल्ड यू दैट दोज पीपल हु आर not vaccinated have multiple sexual partners and someone is infected, so should be use various contraceptions and get vaccinated. So safe practices are आपको हर पॉइंट पे ही सेफ्टी मेजर्स की जरूरत है। इन कंक्लूजन जो है ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस यही है ताकि आप लोग इस बात से पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, और एक्शंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ पब्लिक से, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल कमिटमेंट, गवर्नमेंट की सपोर्ट और जो डॉक्टर्स एंड इनकी सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि सब लोग इस वायरस के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में जाने, कैसे प्रिवेंट किया जाता है जो हमने डिस्कस किया उसको जाने, और उनको अफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है, टेस्ट है और जो वैक्सीन है ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे आए ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा हो सके, और इस वायरस को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वायरस से बचा सकें। दैट विल बी द अल्टीमेट गोल, बिकॉज अगर अकेले खाली डॉक्टर ने बोल दिया या ट्रीटमेंट दवाई दे दी तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पब्लिक हेल्थ मेजर्स लाने के लिए ये सब की जरूरत है। इसलिए सबको अवेयर होना जरूरी है। एज आई टोल्ड यू कि इसमें सारे हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, civil society and the public all together get aware of the virus, test, treat and vaccinate. That is my final message.